بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ کہ جی سب سے پہلا کوشچن ہے کہ ہم فیل کے بارے میں جانیں گے. فیل ہوتا کیا ہے؟ جی فعل کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ زمانہ پایا جاتا ہے. اور ہاں فعل کے جو ہے 3 اقسام ہوتے ہیں: فعل ماضی، مضارع اور مستقبل. لیکن فعل مضارع میں ہی حال اور مستقبل سے پتہ چل جاتا ہے. جی، پہلے تو سب سے پہلے ہے فیل کی تعریف جو کہ آپ نے بتایا کلمے کہ کی وہ کلمے. قسم جو کسی کام کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے، اسے فعل ہاں کہتے ہیں. یعنی کہ کسی زمانے کے ساتھ محسوس کر دے. جیسے ویسے تو ہم کہتے جی ہیں نا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جی یہ جو ہے نا یہ جی سارا جو ہے نام ہے کاموں کے نا. لیکن جب یہ جی کسی خاص زمانے کے اندر یہ پایا جائے تو پھر جو ہے نا جی ہم کہیں گے یا پھر ماضی میں پایا جائے یا پھر حال میں یا پھر مستقبل میں کسی بھی جی زمانے کے جی ساتھ محسوس ہو جائے کہ وہ کرتا ہے یا وہ اس نے کر لیا ہے یا وہ کر چکا ہے جی یا وہ کرے گا. تو پھر جب اس طرح سے آ جائے تو پھر ہم کہیں گے اس میں زمانہ پایا گیا ہے تو وہ فعل کے جی اندر آ جائے گا. یہ فعل کی جی تعریف ہوگی. اس میں عربی جی میں نمبر 2 کوشچن ہے، عربی میں کتنے 3 فعل، افعال معنوں کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں؟ یعنی تین ہے نا میم. فعل جو ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل اچھا، مضارع. آپ نے کہا کہ یہ تین جی اچھا دھیان سے پہلے کوشچن کو دیکھیں، ٹھیک ہے. جی جی عربی میں افعال. کتنے افعال زمانوں کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو افعال جی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں سمجھیں. افعال. جی جی میم. ہاں عربی میں دیکھیں زمانے تو 3 ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا عربی میں بھی زمانے 3 ہی ہیں لیکن افعال جو استعمال ہوں گے نا وہ 2 ہوں گے. جی 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 میم. جی جی ٹھیک ہے، آپ افعال یہاں کا پہ مطلب کوشچن پوچھا. ہاں جی افعال جی پوچھا جا رہا ہے افعال. کہ ہاں ہاں جی تو فعل کی جمع افعال ہوتے ہیں نا. جی جی افعال جی فعل کی جی جمع افعال ہے کہ وہ کتنے افعال جی استعمال ہوتے ہیں. مطلب زمانے تو 3 ہی ہیں لیکن ان 3 جی زمانوں کے اظہار کے دو لیے 2 افعال استعمال ہوتے ہیں اور دو وہ ہے استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں جی وہ ہے ماضی فعل ہے اور ماضی. مضارع ہے. فعل ماضی، فعل مضارع. ہاں فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل پاسٹ مضارع جو ٹینس ہے ہے. وہ جی جی حال اور مستقبل کے مضارع لیے. جو ہے حال اور مستقبل دونوں زبانوں کے لیے مستقبل دونوں استعمال ہوتا ہے. استعمال ہوتے. جی جی حال اور مستقبل مستقبل. جی میم. یہ جی دونوں زبانوں کے لیے دو 3 جی زبانوں کے لیے 2 افعال آگے ہمارے اس پاس. افعال استعمال. جی مادہ اور کیا یہاں ہوتا پہ ہے؟ روٹ ورڈ ہے نا. مادہ روٹ ورڈ ہوتا ہاں ہے. مادہ. جیسا جی کہ یا ما- یخرجو تو خار راجا 3 لیٹرز پر بیس ہوتا ہے. ہاں یعنی کہ کسی بھی لفظ کے جو 3 حروف جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس کی بیس جی بنتے ہیں وہ مادہ کہلاتے ہیں. جی جیسے کوئی بھی مادہ ہمارے پاس کہلاتا. جی کوئی بھی جیسے کوئی اسم آ جاتا ہے اس میں یا ہمارے پاس فعل آ جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جن کا مادہ جی یہ ہوتا ہے زیادہ تر جو ہمارے پاس افعال ہیں ان کا مادہ ذہبہ ذہبہ ہاں خرجہ. 3 جی حرفی ہوتا ہے. 3 حرفی مادہ 3 ہوتا ہے. حرف. اس میں جیسے جی ذہبہ کاتبہ خرجہ. جی خارجہ درسا. یہ سارے اور اس درس. میں جو ہے نا جی جی اب جیسے جی کاتبہ اس نے لکھا جی ہم کہتے ہیں کاتبہ رفع، سجدہ، اس ذہبہ، نے لکھا. ہاں بلغہ. یہ اس سب. نے جی جی لکھا. تو اب اس کے جو ہے نا جو 3 لیٹرز ہوں گے ہم اس کو اب ایسے لکھیں گے. جب ہم جی مادہ کہیں گے تو ہم اس کو ایسے کر کے جی لکھیں گے کہ یہ
मादा अलग के अलग इसके लिखेंगे, फा मादा कलमा, के आइन रूप हैं। कलमा, लाम कलमा। जी जी। हाँ, तो फा अब ये और है ना, आइन लाम। वजन क्या है? मादा हमें पता चल गया, जी मादा क्या मतलब थ्री, जो उसके जी जी मैम। अ, उसके अंडर रूट, जितने भी रूट लेटर्स होंगे जो उसके, उसको जी हम मादा कहते हैं। तो अब इसका वजन जी क्या जी है? मैम। जी, तो वो पैटर्न होता है मैम, जैसे कि ज़हाबा है तो ये फतहा के पैटर्न पे है, ज़हाबा यज़हबु। जैसे कि खरजा यखरुजु तो नसरा यनसुरु, समीआ यस्माउ, इस पर जो है हफिजा यहफजु, इस तरीके से। दरबा यदरिबु। इसका जी, जैसे आप जी, बता रहे थे फतहा वजन क्या? नसरा दरबा, फतहा दरबा नसरा समीआ, ये जो नहीं, छह ये वजन, अबवाब है ना। जी जी नहीं नहीं, ये जी, नहीं। उसका। अब बस हमारा मादा हो जी गया, हमने कहा जो उसके रूट लेटर्स होते हैं वो मादा हो गया। जैसे जी खाराजा का खा जीम और रा, खा रा जीम जी खाराजा। और जी। काताबा का अच्छा, जाहाबा का जाल हा बा, जाहाबा का ये मादा हो गया। अब जी, वजन क्या है? तो वो जो पैटर्न होता है ना मैम, जैसा कि खरजा खरजा यखरुजु, नहीं, अच्छा, ये ज़हाबा तो आप यज़हब। ये आप सीगा बना रही हैं, ये सीगा है, ठीक है। जी अभी जो है जी ना, जी, वजन को वजन हमने का। पता करना है। मतलब वजन जो है, हमने कहा कि जैसे एक हम कहते हैं ना, एक कोई भी सांचा होता है, कोई भी तराजू होता है, उसमें रख जी के जी, हम पैटर्न। मुख्तलिफ जी जी चीजों का जी, वजन तो करते हैं, नसरा, पैटर्न जो होते हैं। नसरा, नसरा है, फतहा है, दरबा है, हाँ, अब जैसे फात। अब हमारे पास जो फाला का वजन है, ठीक है, हम जितने भी जो जी एक जी स्टैंडर्ड वजन है ना अरबी में, किसी भी थ्री जी रूट लेटर्स को नापने के लिए, मतलब हम इसको एक तराजू की जी तरह ले लेते हैं इसको। अब हम जी कहते मैम। हैं कि जो तराजू है ये फाला है। ये थ्री जी लेटर्स हैं, फा, जी, आला। आइन और लाम। जी ये वजन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जी 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 जो मादा के जो हमारे पास थ्री रूट रूट लेटर्स आते हैं निकल के, उनका ये वजन है। हमारे पास जितने भी जी अफ़आल होंगे, हम उसको यहाँ पे इस पैटर्न पे, इस वजन पे हम इसको रखेंगे। जैसे हमने कहा ज़हाबा, जाल फा कलमा के होगा मुताबिक, फा जो है वो आइन जी कलमा पे आएगा, और बा जो है वो नाम कलमा का होगा। यानी कि ये हमारे पास एक जी पैटर्न है, एक वजन है। इस पे हमने जितने भी अफ़आल आएंगे, हम उसको इस जी पैटर्न पे रखेंगे। फेल माजी के होंगे, मुदारे में भी आपको पता जी, थ्री रूट लेटर्स निकलते हैं, लेकिन अभी ये हम सिर्फ फलो, फेल ये माजी को फलो। डिस्कस करेंगे। जी जी हाँ, अभी सिर्फ फेल जी माजी को डिस्कस करेंगे, साहबा और खाराजा। जी अब इस पैटर्न पे हमने खाराजा को रख लिया, हा, रो और जा, जा, ठीक है। इस पैटर्न पे, इस जा, वजन पे हमने फतहा, खाराजा को रखा, फतहा, फा, फतहा, फा, हाँ, फा, ता और हा, फतहा, फतहा। हा, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक सजदा। वजन हो गया। यानी कि जी फाला का जो है ये वजन हो गया हमारे पास, एक जी मैम। स्टैंडर्ड वजन हो गया। और इसको हम कहते हैं जी फा आइन लाम। ये हमारे पास एक वजन हो जी गया। जैसे आपने देखा होगा, अब फाइलुन और मफूलुन भी, ठीक है। अब जैसे एक, अब ये जी भी एक वजन है जिसपे हम इसमुल जी फाइल और मैम। इसमुल मफूल फाइल, बनाते होते हैं। जैसे ये मफूल, फाइलुन का वजन है ना, ये भी एक वजन है ना। फाइल। जी तो मैम। जिसपे हमने, जैसे हमने फाइल, कहा, जैसे काताबा से है, साजिदुन, काताबा से अब देखते हैं। साजिदुन, हाँ, जैसे कातिबुन, इसमें क्या होता है? हाँ, अब जैसे फातिहुन, फा, अलिफ, आइन और अलिफ, लाम। आइन, ये लाम। ये जी, फा ये फा यानी कि ये फाइल। फाइल का, फाइल का वजन है। तो इसी में अगर जी हम, यानी कि ये स्टैंडर्ड वजन होते हैं जिसपे हम रख के जी, अपने मुख्तलिफ बनाते हैं सीगे, ठीक है। जैसे मैम। हो गया इसमें अब साजिदुन, साजिदुन। कातब, हाँ, इसे हम जी, कातिबुन कातिबुन, बनाया। हमने काफ, कातिबुन, फातिहुन, का, का अलिफ, ता, बा। और वाह, ये कातिबुन बन गया हमारा, ठीक है। जी यानी कि ये एक जी वजन होते हैं हमारे पास है, जो स्टैंडर्ड वजन होते जी हैं, जो तरतीब दिए जी गए होते हैं हमारे पास, पहले से मौजूद होते हैं। हमने उस पे तमाम मादा को रख के देखना होता है कि उस पैटर्न पे ये बने, एक वजन जी पैटर्न होता है, ठीक है। और ये जी। अरबी में जो फेल माजी के कितने औजान हैं?
फेल माजी के कितने औजान हैं, मतलब कितने पैटर्न्स हैं? 6 है ना, 6 है। फतहा, नसरा, दरबा, समिया, करुमा, हसीबा। चलो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब आप हम नेक्स्ट को बारी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी जी, रोल नंबर 78 है। आप बताएं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, पता नहीं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप लोगों की क्लास को मैंने यही दोबारा इनको सेंड किया है, लेकिन कहीं से मसला है। और फिर जो है वजन, अब हम इस मादा को हम उस वजन पे रखते हैं कि वो जो वजन मादा है, इस जो हमारे पास फाला वजन है। अब हमारे पास फिर माजी के 3 औजान हैं, दिए गए हैं, ठीक है। वो कौन से औजान हैं जो हमारे पास है फिर माजी के? फेल माजी के 3 औजान हैं। जी हेलो। जी। हाँ, बताएं फाला। कौन से 3 औजान? जी। फाला फौला फाला फाइला फौला। हाँ, फाला, फाला, फाइला फाइला फौला। और फाउला। यार अब मेरी हम पेंसिल। जितने भी जी फेल माजी जी के जी। जितने भी हमारे पास आएंगे, वो हमने इन 3 पैटर्न्स पे उनको सर्च करना है, और ये हमें डिक्शनरी से पता चलेगा हमारा जो फेल है, जो हमारा फेल माजी है, वो हमारे किस पैटर्न पे आ रहा है। फाला के वजन पे, फाइला या फाउला के वजन पे आ रहा है, और ये हमें डिक्शनरी से पता चलेगा। फेल माजी जो है वो मबनी होता है, उसके जितने भी अफआल आते हैं फेल माजी के, उनका लास्ट वाली हरकत इनका जरा एक्सप्लेन कर दें कि हमारी क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है ये फेल माजी है। फेल माजी है। जी, जी इनके जो जी इसके जो खास हरकत होती हैं, उन हरकत को देखते हुए, इसके पैटर्न को देखते हुए हमें पता चलता है कि ये जो है फेल माजी, ये कलिमा जो है ये फेल माजी है। क्या होगा फेल माजी की, क्या कलमा जो हरकत है इसकी क्या तरतीब होती है? ये उसकी जैसे अगर हम बोले जराबा, तो इसके जो है जी, पूरी वो गर्दान बनेगी ना, उसमें जो जो आ रहा होगा, मतलब वो तो 14 सारे सीखे जो सीखे भी। 14 बनेंगे। अच्छा, ये 14 सीखे बनेंगे। अब जैसे हमारे पास हमने कहा कि हमने कोई भी, अब हमारे पास मादा है, ठीक है। अब हमने कहा ये जी हमारे पास मादा है खाराजा, जी जी ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास खाराजा मादा है, खा, रा और जीम, ये हमारे पास मादा है, ठीक। अब हमने इसके जी ऊपर इसको बना लिया, हमने इसको यहाँ पे जेर जबर पेश के बगैर ये हमने ये शक्ल दे दी इसको, ठीक है। इसको हमने जी फेल में बदल दिया, ठीक है। एक जी। कलिमा में बदल दिया, बल्कि स्पीकिंग हम इसको एक कलिमा में बदल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम्म। हम किस तरह से हरकत अपने फेल माजी में, हरकत का एक खास पैटर्न है जिसे हमें पता चलेगा ये फेल माजी में आया है। वो क्या पैटर्न होता है, इसके ऊपर हरकत कैसे लगाई जाती है? इसमें ये अगर पहले वाले वजन से देखेंगे तो तीनों पे जबर आ रही है, फाला जैसे है तो अच्छा नहीं, खराजा हो ये जाएगा। मेरी बात सुन। एक एक फेल जो होता है ना, वो एक ही वजन पे हो सकता है, तीनों वजन पे नहीं होता। यानी कि या तो वो फाला के वजन पे होगा, या फाइला के, या जी फाउला जी। के वजन पे होगा। और जो फाला जो है ना, ये ला, फाला के वजन पे लाम है, ठीक कलमा है। स्टैंड, ये लाम कलमे खराजा पर होगा, जबर अच्छा रहता इस है। तरह से सही है। जी ये खराजा के वजन, खराजा जो है वो फाला के वजन पे होगा। हाँ, और इसके जो है, इसके जो फर्स्ट जो लेटर, जो फर्स्ट हरकत होती है, फर्स्ट लेटर की हरकत जी जबर, इस पे ठीक जबर है। होगा। अगर जो फेल जो मारूफ है, माजी मारूफ है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, तो जबर देते हैं। अगर पैसिव वॉइस, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो फिर इसकी हरकत चेंज होती है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसकी हरकत फा कलमा की जी चेंज जी होती है, ठीक। जी जी और जी जो रा कलमा है ये मुस्तकिल है, मतलब इसके इसकी हरकत जो 3 यही पैटर्न रहेगा। है उन पे आती है, ठीक है। फा यानी जी कि या तो जी। पेश भी आ सकता है, जेर भी पहले आ वाले की सकता है, भी और और जी पहले वाले की और तीसरे वाले की हरकत सेम रहती है, और जो दरमियान वाला है आइन हाँ कलमा, उसकी हरकत जो है वो बदलती है। हाँ। और जीम कलमा जो है लास्ट वाला इसका है, ये मबनी होता है, मतलब आपके जितने भी फेल माजी के पैटर्न आएंगे, उसमें जो जो लाम कलमे की हरकत जो है ना, वो नहीं चेंज होगी, वो
یا زبر ہی رہے گی، ٹھیک ہے. جی صحیح. یہ اس کو کہتے ہیں مبنی علی فتحہ. جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی بر فتحہ یا مبنی علی فتحہ ہوتا ہے. فعل ماضی کا جو ہوتا ہے یہ پیٹرن. اب اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ تین اوزان آگے فعل ماضی کے. ہم نے اس کو حرکات اس کی دیکھ لی کہ پہلے کلمے کی حرکت ہوگی اور دوسرے سیکنڈ کلمے کی حرکت وہ چینج ہوگی. وہ ہم ڈکشنری سے پتا کریں گے کہ ہمارا سیکنڈ کلمے کا جی کیا آ رہا ہے، کس وزن پہ آ رہا ہے. اور تھرڈ کلمے کی حرکت بھی زبر ہی ہوگی، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی. اور پھر اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے تصریف اور گردان میں کیا فرق ہے. کیا ہے؟ ہاں، تصریف یہ دو تصریف الفاظ اور سر نے گردان. بھی اپنے لیکچر میں استعمال کیے تھے. تصریف اور گردان میں کیا ڈفرنس ہے. نہیں، میں بھی تصریف تو نہیں پتا مجھے. گردان پتا ہے مجھے. تصریف، ہاں یہ تصریف اور گردان عربک ایک ہی چیز کے تصریف دو نام صرف ہیں. صرف ہے. اچھا، ایک تصریف کا ہاں مطلب ٹھیک ہے صرف دونوں. ہے. عربک ہاں میں ٹھیک ہے. اچھا جی جو سر نے جس طرح سے اپنے لیکچر میں بھی بتایا کہ تصریف اور گردان جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں جی جو جی ہے نا گردان جو ہے نا وہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے اور گردان اردو اور فارسی میں گردان کہا جاتا ہے. اور تصریف عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. عربی زبان کا لفظ ہے تصریف، اور عربی میں گردان کو تصریف ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس اچھا کا ڈفرنس ہو گیا دونوں کا کہ زبان کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے. ایک اچھا ہی چیز کے دو نام ہیں. اور اب اچھا. حصہ دوم ہے، اب ہم بعد میں کریں گے. پہلے جو ہے ہاں اب یہاں پہ آگے یہ والا ہم نے کر لیا عربی میں زبانیں. جو فعل ماضی کی تصریف غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے بیان کریں. غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے. مطلب کیا کرنا ہے مجھے اس کو؟ یعنی کہ آپ نے جو فعل ماضی کی تصریف جو ہے نا گردان. غائب، جی حاضر اور متکلم، مطلب آپ نے بتانا ہے غائب میں کتنے صیغے ہوتے ہیں، حاضر میں کتنے ہوتے ہیں اور متکلم میں کتنے ہوتے ہیں، یہ بتانے ہیں آپ نے. اچھا. تو غائب یہ متکلم کے تو دو ہوتے ہیں، ایک واحد. جی 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 ایک واحد اور ایک جمع اور مثنیٰ کا ایک ہی ہوتا ہے اس میں. جی. غائب کے ہو گئے کتنے صیغے ہوئے. یہ متکلم کا بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ متکلم کا بتا رہی ہوں. اور نہیں، آپ سب سے پہلے واحد. عربی کی گردان جو ہے نا وہ عربی کی گردان غائب سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اچھا اچھا. غائب سے شروع. جی واحد مذکر غائب. جی اس میں ایک خرجہ، خرجہ، خرجو، اس طرح سے میم. آپ اس طرح سے بتائیں نا کہ جو غائب کے 6 صیغے غائب کی ہیں، ٹھیک ہے. 6 جو ہیں جی وہ جی حاضر 6 کے ہیں اچھا، ہوتے اور اس ہیں طرح کا نمبر بتاؤں حاضر دو میں آپ کے کو. ہیں، متکلم کے 2 صیغے ہیں، ٹھیک ہے. متکلم. جی 2 متکلم کے صیغے چھ ہیں. چھ جو ہے وہ غائب کے ہیں، اور 6 جو ہے اس کے ہیں حاضر کے ہیں، اور 2 متکلم کے. 3 جو ہے وہ مذکر کے ہیں، غائب میں سے. غائب مذکر غائب کے ہیں، اور 3 مؤنث غائب کے ہیں، اور 2 متکلم کے ہیں. اچھا یہ آپ ایک حاضر. یہاں پہ اور کوشچن تھا، مجھے وہ مل نہیں رہا یہاں پی ڈی ایف میں. پتہ نہیں شاید لکھنے میں ہو گیا. ایک تھا سیگا کسے کہتے ہیں. ایک کوشچن تھا سیگا کسے کہتے ہیں. صیغہ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا جی میرے پاس بھی تھا. یہ ضمائر کے مطابق جو ہے وہ فعل کے صیغے بنانے کو تو گردان کہتے ہیں، اور صیغہ جو ہے وہ کسی فعل سے مختلف زبانوں میں. یعنی ہم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایک گردان میں 14 صیغے ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا ایک گردان میں 14 صیغے ہیں. جی جی. تو اب یہ تو سیگا وہ کیا ہوتا ہے. کسی بھی فعل سے مختلف زبانوں کا جو مفہوم رکھتے ہیں، وہ مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے، وہ صیغے کہلاتے ہیں. اچھا یہ سیگا ہوتا ہے. سیگا کسی فعل کی وہ شکل ہوتا ہے، مطلب ایک
ترتیب ہوتا ہے فعل کی وہ جس میں خاص ضمیر جو کسی خاص ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. جیسے آپ کو سر نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ کسی بھی زبان میں گردان کے صیغوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنی وہاں پہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. جتنے اس زبان میں ضمائر استعمال ہوتے ہیں اتنے ہی وہاں پہ وہ صیغے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عربی میں کیونکہ 14 ہے ہمارے پاس ضمائر. ٹھیک ہے. عربی میں 14 جی ضمائر ہیں تو اس لیے جو گردان ہے اس کے 14 صیغے بنتے ہیں. یعنی کہ صیغے بھی 14 یہ ہاں جس میں خاص ضمیر کے مطابق ہوتے ہیں یہ ہے نا جس میں ایک جی گردان کا ہر ایک صیغہ ایک خاص ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جیسے دیکھا نا ہمارے پاس ایک گردان ہوتی ہے اس میں ہر جو صیغہ ہوتا ہے وہ ایک ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. جی جی تو یہ اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں یعنی کہ جو کسی ضمیر کے مطابق ہو تو یہ صیغہ کہلاتا ہے. اور ثلاثی سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی جو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد ہم ابھی وہی پڑھ رہے ہیں. اچھا کہ ثلاثی افعال اس سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی مجرد کا چارٹ ہوتا ہے میم اس کا. جس کے یعنی کہ ہم نے ثلاثی یہ ابھی ڈیفینیشن دی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ثلاثی جی سے مراد وہ ہوتا ہے فعل کا یا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے جو روٹ ورڈ جو 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی کا مطلب جی ہی 3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے روٹ ورڈ ثلاثی 3 ہوتے ہیں کیونکہ ابھی آپ جی آگے پڑھیں گے ان کے 4 بھی ہوتے ہیں کئیوں کے نا. تو پھر جن جی کے جی روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں ان کو ہم ثلاثی سے تعبیر کرتے ہیں. جی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس صیغوں کا اب نیچے دیے گئے صیغوں کا اردو ترجمہ کریں. اب یہاں پہ ایک گردان آپ کو نظر آ رہی ہے فعلا فعلا اور یہ آپ کو پتا ہے ساری گردان کا. جی ایسے 10 لوگوں سے زیادہ صیغہ جو ہے نا وہ کلاس جوائن نہیں ہو پا رہی. وہ سی اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہے. فعلا کے پیٹرن پہ یہ فعلا بنا رہے ہیں ایک گردان. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ نے بتانا ہے کہ ہر ایک صیغے کا کیا مطلب ہے. جیسے ہم پہلا صیغہ بناتے ہیں فعلا. اس کا ترجمہ کرنا ہے. جو آپ کے نام امین چاچو کی گاڑی میں ہے نا آپ اس دن لیے میں گاڑی میں بیٹھ کے پیے تھے. جی پلیز امین اپنے چاچو کو مائک بولیے کو ہماری میوٹ کر بیگ لیں. لے کے آؤ بول کے. آپ میم پلیز اس کا اپنے ترجمہ مائک کرنا میوٹ کر کے بات کریں. جی ہے. جی فعلا یہ گردان کا پہلا فعل ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے. فعلا کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. فعلا اچھا یعنی اس کے اس اب نے ہم نے کیا. کہا جی کہ جو گردان کا فعل کی گردان کا ہر صیغہ جو ہے نا وہ ایک ضمیر کے مطابق لایا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہر صیغہ اب کس ضمیر کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. جی یہ ہوا کہ اس سب کے سے اندر پہلا ایک والا ہاں ایک تو متصل ضمائر ہوں گے بیچ میں لیکن آپ نے بتانا ہے کہ جو ہمارے پاس 14 ضمائر ہم نے مرفوع منفصل ضمائر بڑے ان کے مطابق ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سا جو صیغہ ہے کس ضمیر کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. فعلا جی فعلا یہ سب سے پہلا صیغہ ہے گردان کا واحد مذکر. اور اس کا معنی ہے کہ اس ایک مرد نے کیا مطلب مذکر نے ہاں اسے ایک مذکر نے کیا. کیا. تو یہ کس ضمیر کے مطابق ہے؟ یہ ہوا کا ہے. ہوا کی ضمیر کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. جی اور نیکسٹ صیغہ واحد مذکر یہ پہلا ہو گیا واحد مذکر غائب کا ہے. ٹھیک ہے. جی جی یہ واحد مذکر غائب کا ہے. پھر اس کے بعد ہے اس فعلا. جی اب نیکسٹ ہے جی اس کا جو ضمیر ہے فعلا کا یہ ہما کا ہے. ہما ہے اس میں ہما کی ضمیر ہے یہ. اور اس کے معنی ہے کہ ان دو مردوں نے کیا یا وہ دو ہاں ان مثنیٰ دو مذکر نے کیا. تسنیہ یا بھی اس کو سنا کہہ کا سکتے ہیں صیغہ. مثنیٰ مذکر غائب. ٹھیک ہے. نیکسٹ فعالو کا کیا ہے؟ فعلو یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے. اس میں ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اس کے اس میں معنی ہم ہے کہ ان جمع سب مردوں نے کیا. ہاں کیا. اب دیکھیں کیا جو ہے نا ہم لاسٹ میں کیا لگا رہے ہیں مطلب یہ فعل فعل ماضی کو ماضی شو کا کر ہے. رہے ہیں ماضی میں جی کچھ ہوا ہے. جی نیکسٹ آپ بتائیں نیکسٹ فعالت. فعلت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ اس میں ہوا ہما یہ ہا ہما ہیا کی ضمیر ہے اس میں.
ہاں ہیا کی ضمیر ہے اس میں. ہیا کی نیکسٹ ضمیر ہے اس میں. فعالتا. فعالت یعنی اس ایک عورت نے کیا یا اس ایک مؤنث نے کیا. جی اس کا نیکسٹ طریقہ بتائیں. اسی طرح سے فعالتا اس میں جو ہے وہ ہما کی ضمیر ہے اور اس کے معنی ہے کہ ان دو عورتوں نے کیا. پھر اس کے بعد ہے دو نہیں. فعلنا، یہ ہم کی ضمیر ہے اس کے اندر اور اس کے معنی ہے کہ ان سب عورتوں نے کیا. فعلنا میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہم ہیا ہما ہیا ہما ہم کی ہم ضمیر ہے اس نہیں، میں. ہننا. ہننا ہننا، ہوتا ہے ہننا. جی جی صحیح ہے اور مؤنث ہے جی. ہیا جی ہما ہننا، ہننا. ہننا کی ہاں ضمیر ہے ان اس کا مؤنث نے کیا. میں. جی فالتا میں انتا کی ضمیر ہے اس کے اندر یعنی واحد متکلم ہاں واحد متکلم مذکر، واحد حاضر واحد متکلم مینس حاضر متکلم متکلم، حاضر. واحد حاضر نہیں نہیں متکلم. حاضر. اچھا وہ حاضر اور واحد متکلم حاضر ہی ہوگا جی، متکلم تو دوسرا ہوگا. صحیح ہے، جی. یہ واحد مذکر حاضر ہے اور اس کے مذکر. معنی فعالتا ہے اس کے. تو ایک اچھا یہاں پہ مذکر نے کیا. جی یہ کسی کی آواز بیچ میں سے بہت آ رہی ہے. جی. ایک منٹ چلیں. اس کے بعد اب ہے اب فالتی. اس میں مسنگ ہے. اچھا اس میں کچھ سیگے مسنگ ہے اس کو بھی آپ جی کمپلیٹ کریں. فعالتا کے آگے کون سا فالتا سیگا تھا؟ یہ انتا کا ہے. فالتا اس کے نیکسٹ سیگا بتائیں. یہ جی فعالتا کا نیکسٹ سیگا کون سا ہے؟ فالتا فالتما، ہاں فعلتما. یہ کس اس میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ کس مثنیٰ فعل کا ہے. کے اس میں مطابق؟ انتا تما، یہ تما کی ہے ضمیر. نہیں تما کی ضمیر ہے. جو تا مرفوع تما منفصل ضمائر ہیں، مرفوع منفصل ضمائر ہیں اس میں بتائیں. کما. انتا انتما انتم، یہ کما کی ہے یا تما کی ہے؟ کون بتائے گا کس کی ہے؟ انتما. کس کی ہے؟ فعلنا ہاں فعلنا انتما کی ہے. ٹھیک ہے. انتما، اچھا انتما کی ہے. ٹھیک ہے. انتما جی یہاں پہ انتما کی یہ ضمیر ہے. انتما کے مطابق یہ فعل جو ہے انتما جی کی ضمیر کے مطابق آیا ہے. ٹھیک ہے انتما. صحیح. اب نیکسٹ. اب یہ اس کے بعد ہے فالتما فالتا فالتما فالتم. اس کے بعد آئے گا فالتم، تو یہ ہاں انتم تو کی یہ کس ضمیر کے ہوگی. مطابق؟ ہاں انتم کی ضمیر کے انتم مطابق ہے. جی. جی پھر اس کے اور بعد ہے نیکسٹ. فالتی. فالتی جی یہ ہاں حاضر مؤنث کا صیغہ ہے. حاضر فالتی مؤنث کی، حاضر نہیں. حاضر ہاں مؤنث کی ہو ضمیر گیا. اور اس کی جو جی ضمیر ہے وہ انتی ہو گیا. اور اس کے جو انتی اس کے پھر مطابق جی ہیلو. یہ اپنے مائک جو ہے پلیز میوٹ کر لیں. ایک منٹ. ہاں نیکسٹ جو فالتی کے آگے کون سا ہمارے پاس صیغہ ہے؟ پھر اس کے بعد ہے فالتما. فالتما. فالتی وہ فالتما اس میں کون سی ضمیر ہے؟ کون سی ضمیر کے وہ مطابق انتما ہے؟ کی ہوگی. انتما کی ضمیر کے مطابق ہے. نیکسٹ. جی نیکسٹ پھر اس کریں. کے بعد ہے انتم. فالتی انتنا. ہاں فالتی. انتن فالتی انتما. یہ فال کیا آپ بتا نہیں یہ نہیں فالتا فالتما ہو گیا تھا. پھر فالتم سے بتا رہی میں، فالتم میں ہوگا فالتنا کی ضمیر. فالتم تو ہو گیا نا. فالتم ہو انتنا گیا. کی ضمیر. انتنا فال کی فالتما. انتنا فالتما. جی. فالتو فالتی فالتما فالتما. فالتما. اس میں انتنا کی ضمیر کے مطابق ہے. تم سب مؤنث. تم سب مؤنث. ٹھیک ہے انتنا. انتنا اچھا نیکسٹ لاسٹ دو سیگے رہ گئے ہیں. جی. یہ فالتو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں جو ضمیر ہے وہ انا کی ہے. اور فالنا. اور فالنا یہ نحنو کی ضمیر ہے اس کے اندر. نحنو کی ضمیر ہے. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. جمع متکلم اس میں دو بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بہت فالنا زیادہ. میں.
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس مرفوع منفصل ضمیریں یعنی کہ 14 ضمیریں عربی میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے مطابق فعل کی گردان کے 14 صیغے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں ان کے ساتھ یہ ہم نے مرفوع منفصل ضمائر، اب اس میں متصل ضمائر کہاں پہ ہیں؟ متصل ضمائر کہاں پر ہیں؟ جی کون سے ہیں آپ نے یہ بتانے ہیں. تمام گردان کے صیغوں میں پہلے یہ متصل ضمائر کے حساب سے ہم نے گردان بن گئی ہماری. اب ان میں متصل جو ہے نا وہ ضمائر کون سے ہیں؟ مرفوع متصل، ان کو کہتے ہیں مرفوع متصل ضمائر. ہر صیغے میں کہاں پہ ہے اور اس کی کیا نشانی یہ بولتے ہیں؟ مرفوع متصل ضمائر یہ ہاں ہم نے فعال پڑھا ہے میں نا مرفوع جیسے متصل جیسے اس میں ابھی جو ہم لوگوں نے کی اسی میں سے بتاؤں. ضمائر. جی اسی میں سے ہوتا ہے نا فعال میں. ہاں ہاں فعالہ میں جو ہے وہ ہوا ہے، یہ ہے ہوا ہوگا مرفوع متصل. چلیں اب آپ کے ساتھ ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے رول نمبر 6. جزاک اللہ خیرن کثیرا سے رول نمبر 78. بارک اللہ فیک. اور رول نمبر 6 ہے، آپ اوپن کریں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ نہیں میں نے اچھا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کہ بلانے کے لیے، میں نے کہا اگر جی میم ٹھیک ہے. مجھے کال کر کے. جی ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے. ابھی ہم نے کہا ہم نے مرفوع منفصل ضمائر کے حساب سے ہم نے اپنی گردان کے 14 صیغے بن گئے ہمارے. اب آپ بتائیں ان 14 صیغوں کے اندر ہمارے پاس مرفوع متصل ضمائر کے طور پہ کیا کیا آتا ہے وہ بتائیں. فعال میں جو ہے وہ مرفوع متصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ میم اس میں ہوا کی ہوتی ہے؟ ہوا کی ہوتی ہے، لیکن وہ بتائیں وہ اس کا کیا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ رکھا کی حالت میں ہوتی ہے میم، اسٹیٹس کے نہیں یہ لحاظ سے اس کے اندر یہ ہوا کی ضمیر ہوگی لیکن یہ مستتر ہوگی، مستطر ہوگی. پوشیدہ ہاں جی ہوگی. مستطر ہوگی، ہاں جی چھپی ہوئی ٹھیک ہے، ہوگی. یہ اس کے ساتھ ساری کے ہمیں 14 چیزوں میں جو ہوتی ہے ضمیر وہ مستطر ہی ہوتی ہے نہیں. اس اچھا کے. 14 کی 14 صیغوں میں مستتر نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جیسے فعل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کاتبہ لکھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے جی انگلش میں کہتے ہیں ہی رائٹ، ہی رائٹ، شی رائٹ، یو رائٹ، دے رائٹ، آئی رائٹ، وی رائٹ، ایسے ہی لکھتے ہیں نا. یعنی کہ مطلب ہم جی ایسے اس کو بیان کرتے ہیں. جب ہم رائٹ اس کے علیحدہ ضمیر ہوتی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں تم نے لکھا، تم نے اس نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا. ٹھیک ہے، اب ہم نے جی لکھا دیکھیں الان ہے نا ہمارے پاس ضمیر علیحدہ آ رہی ہے اور ہمارے پاس جو فعل ہے وہ علیحدہ آ رہا ہے. فعل تو بدلا جی نہیں نا ہے، مطلب فعل تو لکھا ہی رہا، مطلب وہ جو لکھا جی تھا یا رائٹ تھا وہی کا وہی رہا. اب اس میں بھی جو ہے نا فعل تو وہی رہے گا لیکن اس کے ساتھ آگے جو اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں نا وہ اس کے ساتھ مرفوع متصل ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جی آپ کہیں گے بس دو صیغوں فا- کے علاوہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہوتا ہے ان میں صرف مستتر ہوتی ہیں ضمیریں. ان میں جو ہے نا وہ باقی سب صیغوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مرفوع متصل ضمائر. اب جو فعال میں ہوا مستتر ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم ٹھیک ہے کہتے ہیں یعنی بارز، بارز بھی کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، فعال اس میں کون سی ہے؟ فعال میں اس میں میم ہما کی ضمیر ہے. نہیں وہ تو ہمارے ہو گیا نا، ہم نے ان کے قاعدے کے مطابق ہم نے ہر ضمیر کے مطابق ہم فعل لے کے آ گئے ہیں. تو اب اس میں جی بتائیں کہ اٹیچ ضمیر کون سی ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع متصل ضمیر کون سی ہے فعال میں؟ میم یہ لکھ اس میں کے دیکھو بتائیں گے. اس کو میں یہ دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو نا. جیسے ہم نے فعال اب پلس الف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مل کے جو ہے نا اصل فعل تو تھا یہ والا. ٹھیک ہے، اصل فعل جو تھا یہ والا اور اس کے ساتھ یہ ہم نے مرفوع متصل ضمیر اٹیچ کر دیا الف کی. اس کو کہتے ہیں الف الاسنین. الف اسنین کہتے ہیں یعنی کہ مثنیٰ کا الف ہے، ٹھیک ہو یعنی گیا کہ ٹھیک ہو. دو کے لیے بولا جاتا ہے الف اسنین فعال. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے ٹھیک ہے پاس مثنیٰ کا صیغہ بن گیا. اس کو آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے کوئی آپ سے پوچھے تو یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ آپ یہ نہیں سیدھا آپ نے کہا فعلا فعلا فعلو، یہ آپ رٹے سے یاد کر سکتے ہیں لیکن آپ کو طریقہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری گردان بنی ہے. ٹھیک ہے، فعلا یہ ہمارا گردان کا دوسرا صیغہ آ گیا. اس کے ساتھ الف الاسنین جڑا ان کے مثنیٰ کا. تو یہاں پہ دو نے کیا، ان دو مذکر نے کیا. اب فعلو کا کیا، یہاں پہ کون سی
ज़मीर इसमें मैं मुस्ततिर है, मरफू मुस्ततिर नहीं कहेंगे, मरफू मुत्तसिल ज़मीर। कौन सी ज़मीर मुत्तसिल है और उसका वाओ क्या है? वाओ मैम यहाँ पर है। हाँ, फेल, ये हमारे फाल, पास फेल फिर का इसमें प्लस फाला हो वाओ। गया प्लस वाओ। हाँ, और ये वाओ जो है ये हमारी मरफू मुत्तसिल ज़मीर है, ठीक है। फेल के साथ अटैच होके ही आती है। ये मुत्तसिल इनको इसीलिए कहा जाता है, ये फेल के साथ, इनका सिर्फ यही काम है मरफू मुत्तसिल ज़मीरों का, कि ये फेल के साथ अटैच होके आती है और एज अ फाइल यूज होती है, ठीक है। हर फेल जी के अंदर आपको इसलिए मिलता है कि फाइल, एक हर गर्दान का एक हर सीगा जो होता है वो एक जुमला फेलिया होता है। क्यों जुमला फेलिया होता है? क्योंकि जुमला फेलिया के लिए हमें कम से कम फाइल दो भी अज्जा चाहिए था। हमारे पास होने चाहिए, फेल प्लस फाइल। अब गर्दान जी का हर सीगा जो होता है ना उसमें फेल और उसमें फाइल जो होता है वो उसके साथ अटैच होता है हर सीगे के अंदर, जी ठीक है। इसलिए हम इसको कहते जी हैं हर गर्दान का सीगा एक जुमला फेलिया है। ये हर आपको जो भी आपको सीगा नजर आ रहा है ये एक, इसको आप जुमला भी कह सकते हैं कि ये एक जुमला फेलिया है, ठीक है, गर्दान का हर सीगा, क्योंकि इसके साथ जी फाइल भी जो एज अ मरफू मुत्तसिल जमीर है वो अटैच है। फालू में हमारे पास वाओ आ गया एज अ मरफू मुत्तसिल जमीर। और फ़ालत, इसमें बताएं। अलग। तो अब मैम इसमें हम ता बोलेंगे या हिया बोलेंगे? नहीं, ये चौथा सीधा तो इसमें अच्छा, हिया है। अच्छा, ये पहले भी क्लासों में मैंने बताया था कि फाला जो पहला सीगा और जो चौथा सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का और वाहिद मुन्नस गायब का, ये बोलो। दो सीगे जो है इनमें जमीर मुस्ततिर होती है। और ये जी ता किस लिए लेके आया जाता है? ता क्या हमें बताता है? मैम ये मोहन्नस के बारे में बताता है। हाँ, ये इसको कहते हैं ताय तानीस, ठीक है, इसको कहते हाँ हैं जी, ताय तानीस कहते हैं इसको। ठीक है। यानी कि मुअन्नस की ता, ये मुअन्नस को शो करने के लिए लाई जाती है कि ये जो सीगा है ये मुअन्नस को शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें जी कौन सी जमीर मुस्ततिर है? इसमें हिया। हाँ, इसमें हिया की, अब इसको हम ता को जमीर नहीं कहेंगे, ठीक है, कि हम इसको जी कहेंगे ये मरफू मुत्तसिल जमीर ता है, ताए तनीस है। इसमें जो जो मरफू जमीर इसमें मुस्ततिर है और वो हिया की जमीर है, ठीक है। जी अब फालाता, इसका बताएं, इसका क्या है, ये कैसा इसका पैटर्न है? में भी मैम जो अलिफ है वही जमीर है। अलिफ जो हाँ, ये देखिए, तरतीब। ये फेल हो गया हमारे पास, फाला, ये फेल था। और ताई तनीस और का आ इसके गया। साथ अलिफ आ गया। और ये ता जो जी है ये ता किस लिए था? ये ता क्या शो कर रहा है? तनीस, तनीस को हाँ, शो कर रहा है दो और पे। ता जो है ये दानीश को शो कर रहा है, और यहाँ पे अलिफ। अलिफ पे ये दो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये पैटर्न इसका बना फालाता, ठीक है। ये जी ये मुसन्ना के लिए है और ये तानीस के लिए है। अब नेक्स्ट फालना, जी इसमें इसमें मैम बताएं। हम इसका, इसमें हम कहेंगे कि ये नून जो है ये इसकी, इसमें जमीर है। अ, हाँ, इसमें जमीर है, इसमें मुत्तसिल मरफू मुत्तसिल जमायर हैं। मैंने आपको जी मैंने आज ग्रुप में भी किया था शेयर, पूरा मरफू मुत्तसिल जमायर का चार्ट शेयर किया था कि कौन कौन सी जमीर मुत्तसिल होती है, कैसी होती है। इसमें क्या अच्छा, है हमारे पास मरफू मुत्तसिल जमीर के तौर पे क्या आया हुआ है? देखने में तो ये अब अगर इससे ज़ाहिर अब देखते हैं। देखें, किससे हमें पता चल रहा है कि ये जो ना जमा मुअन्नस गायब की जमीर है? कैसे हम यानी कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे सीगों से इसके साथ? ना ना की जमीर आ रही है। मैम ये जो ना, ना, ना एक ना देखिए है इसमें और जो अपन जो साकिन है। ना ना तो मैम मैंने प्लस ये पहले जो, बोले। ये देखिए फाला और ये जो नून है, नून निस्वा, ठीक है। नून निस्वां, आपकी नून थोड़ी सी निस्वां आवाज है। हाँ, ये ठीक है। थोड़ी सी आवाज भी आपकी स्लो है, ठीक है, जरा से ऊंची थोड़ा सा बोले, ठीक है, ताकि पूरी तरह समझ जी आ पाए। ये फाला प्लस नून जो है, नून निस्वा, ये हमें बता रहा है यहाँ पे जमा मुअन्नस गायब की जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, ठीक है। नहीं तो हाँ, आप बताएं फालता, ये सातवां सीगा हमारे पास आ गया गर्दान का, फालता। इसमें मैम ता जो है ये जमीर हाँ, मुतसिल ता है। जो है ये जमीर है, इसको कहेंगे मरफू, इसमें ता की जमीर है फाला के बाद। अब जहाँ पे देखिए हमारे पास
नंबर 5 तक सीगे थे, उसमें हमने देखा हमारा लाम कलमा जो है वो जबर वाला है, मुतहरिक है, ठीक है, गर्दान के 5 सीगों तक। ठीक है, ये 5 सीगे हो गए, इस तक हमारा लाम कलमा मुतहरिक है। और उसके बाद जो है ना अपने छठे सीगे से हमारा लाम कलमा साकिन आ गया। इसकी भी मैंने वजह जी बताई थी आपको। जो मुत्तसिल जमायर आगे अटैच होके आ रहे हैं, वो मुत्तसिल जमायर जो है ना अब यहाँ पे उनके पहले जो 5 जमायर थे उनके साथ वो हम साकिन थे, ठीक है। उन तमाम के ऊपर 5 के साथ साकिन थे और लाम कलमा मुतहरिक था। जैसे ही छठा हमारा सीगा शुरू हुआ तो लाम कलमा साकिन हो गया, वो जो जमीरें आगे आ रही ना वो मुतहरिक हैं, ठीक है। इसलिए जी यहाँ पे ये लाम कलमा साकिन है कि आगे जमीरें मुतहरिक हैं। अब फाल जी तुमा, जी इसमें क्या है फालतुमा में? मैम इसमें माँ होगा कि अलिफ ही आएगा? अलिफ ही आएगा दो के लिए, तस्नीया के लिए अलिफ ही आएगा। नहीं, हमें कैसे पता चला कि ये जम नाम मुसन्ना का सीगा इनके मैम ये ता मुजक्कर भी गायब का सीगा? है, इससे माँ कबल ता भी है। हाँ, ये अफाल तुमा, तुमा पूरा लफ्ज बोले ना, तुमा है, सिर्फ अलिफ नहीं। अलिफ तो शो कर रहा है ना कि ये मुसन्ना है, अलिफ शो कर रहा है ये मुसन्ना है, लेकिन तुमा जो है ना ये इसके हाजिर को भी शो कर रहा है कि ये ठीक हाजिर है का सीगा है, ठीक है। ठीक है। फाल तुमा, यहाँ पे ये सीगे नहीं लिखे हुए तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। फाल फाल तुमा, के आगे मैम आ जाएगा फातिम। फाल तुम, ठीक है। इसमें कौन सा है हमारे पास मुत्तसिल जमीर? मीम मैम। इसमें मुत्तसिल फाल तुम में कौन सी मुत्तसिल जमीर है? मीम। मीम नहीं, फाली मीम नहीं। अच्छा तुम मीम, भी अच्छा दिख मीम जो होती है ना, ये मीम जो होती है ना ये जमा को शो करने के लिए, वैसे इसे मीम जमा भी कहते हैं, लेकिन ये जमा को शो करने के लिए लाई जाती है। अब जो है ना हाजिर के तुम यानी कि मुसा मुजक्कर, उसके लिए जो है ना हाजिर के लिए ये साथ तुम जो पूरा इसको तुम को देखेंगे, ठीक है। तुम बोलेंगे, ठीक हो गया। हम तुम ठीक कीजिए। है, तुम बोलेंगे इसको फाल तुम। अब ठीक हो नेक्स्ट गया। सीगा फाल ती। इसमें मैम ता जो कचरा ये मोनस को शो कर रही है, और यही जमीर है इसमें। हाँ, ये जो है ये मोनस को कसरा के साथ शो कर रही है, ती की जमीर, इसमें मरफू मुत्तसिल जो मरफू मुत्तसिल जमीर है, ठीक है। और जी फालतुमा, इसमें वही फिर तुम आ थी। हाँ तुमा जो है ये हमारे कर पास है। मोनस एक हाँ, यहाँ पे मुसन्ना को, दो करें। ऐसे यहाँ पे जगह नहीं बचती, फिर मुझे बार बार इस करना पड़ता है। फालतुन्ना, फालतुन्ना, इसमें भी मैम फिर फालतुन्ना, तुलना पूरा ही होगा। हाँ फाल तुन्ना, जी तुलना जो तुन्ना है जो है हमारे पास जमा तुन्ना। जमा मोनस। हाँ तुन्ना, हाँ तुन्ना से हमें पता चल रहा है ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, जमा मुअन्नस हाजिर का है, ठीक है। फाला तुम प्लस तुन्ना। जी। अब फालतू, हाँ टू में मैम ये टू ही है इसमें। ताज जो है मरफू है, ये बता रहा है कि वैसे हाँ इसमें ये फाइल है। मजबूत बता रहा है, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है। जी जी फाइल इसमें आना है। और फालना, इसमें मैम ना नून जबर अलिफ वाला ना। फालना प्लस ना, और ये हाँ जमा मुतकल्लिम को शो कर रहा है। तुम सब मुजक्कर ने या मुअन्नस ने किया, मुतकल्लिम में मुजक्कर मुअन्नस दोनों शामिल होते हैं, यहाँ पे वाहिद के लिए और यहाँ पे जमा के लिए। मैम इनका नाम मरफू मुत्तसिल मुत्तसिल जमात एक और जमात, क्या है? एक तो मुस्ततिर है, एक बारिज आपने बोला। मुस्ततिर और जमायर बारिज, जो दो बारिज जमायर हैं वो मुस्ततिर होते हैं, बारिज बाकी जमीरें बारिज होती हैं, मतलब जाहिर जो होती हैं, ठीक है। बारह है वो बारिज है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मैम। मरफू ये, अच्छा ये मैंने पूरा यहाँ पे नोट बना के शेयर किया था ग्रुप में, तो किसी ने देखा नहीं है? मरफू मुत्तसिल मैं जमायर। देखती हूँ, चीजें काफी आती रहती है ना, फिर वो कोई ना कोई चीज ठीक हो जाती है। मैं चलो डिटेल से आज देखती हूँ। जी, हम्म। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ हैं हम जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाकल्लाहु खैरन की तस्वीर। कसीरा।
रोल नंबर 92 है, 92 हमारे साथ है। इनके साथ अब ये आपने बताना है कि हमने यहाँ पे कुछ अफ़आल लिखे हैं। आज हम जो है ना इसमें यानी कि पूरा जुमला फेलिया का सिर्फ फेल और फाइल, कल इंशाल्लाह हम इसके साथ मफूल भी लगा लेंगे। अभी जो है हम इसको करते हैं इनके साथ ही, ठीक है, प्रैक्टिस। इसके अलावा फिर कुछ मेरे पास कुरान पाक की आयत हैं, हम उनको देख लेंगे कि इनके साथ मलफूज मुتصल ज़मीर क्या है, या फिर फाइल जो है वो जाहिर। फाइल जो है हमारे पास जो है दो सूरतों में आता है। रोल नंबर 92 आप बताएं हमारे पास फाइल कहाँ कैसे कैसे आता है। रोल नंबर 104 है, आप बताएं। रोल नंबर 104। सॉरी मैडम, मैं वापस, वो मेरा चला गया था, मैं अब आ गई हूँ। सॉरी, अब मैं चलें देख ठीक है। सकती हूँ। चल आप बताएं कि हमारे पास जो है फेल माजी में हम पढ़ रहे हैं फेल प्लस फाइल, ठीक है। अब अगर हमारे पास फेल के हमारे पास सीगे पर हमें पता चल गए, ठीक है, तमाम सीगे 14 के 14 हमने पढ़ लिए हैं। तो अब इसमें बताएं हमारे पास अगर हम फेल माजी क्या सिर्फ फेल और फाइल के साथ जुमला बना रहे हैं, तो हमारे पास फाइल किन सूरतों में आ सकता है। फाइल हमारे पास फाइल और ऑलवेज फेल जो होता है वो मरफू होता है, और फाइल जो है वो नहीं, मंसूब। इसमें जाहिर और ना मुस्ततिर के हिसाब से बताएं ना, जमीर जाहिर और जमीर के हिसाब से बताएं। मतलब कहाँ पे हमारे पास यानी कि दो सूरतों में हमारे पास पहले फाइल आ पहले सकता है जुमला फेलिया में। पहले या तो पहला जाहिर होता है। या पहला सीगा जो हमारे पास पहला सीगा होता है, और जो और छठा सीगा जो तीसरा, जो 1 2 3 4 जो चौथा। सीगा होता है, या चौथा जो सीगा होता है, उसमें हम वो जो है वो इसी तरह लगता है। बाकी जो जब अगर हमारे पास जाहिर हो जाए तो वो फिर ये जो होते हैं ये ऑलवेज सब सीगों के साथ ऐसे ही लगते हैं, इसी हालत में ही। फ़अला फ़अल फ़अलत, तो इसी हालत में लगेंगे, वो चेंज नहीं अच्छा। होंगे, चाहे मुज़क्कर हो, हाँ, मुअन्नस हो, जमा अब हो। हम चले हम जो एक फेल को ले लेते हैं, हम फेल के साथ मिला के करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन भी आपको समझ है, लेकिन आप बता नहीं पा रही हैं। जैसे खाराजा है, ठीक है, हम्म, हम खाराजा फेल को ले लेते हैं। तो इसमें हम इसकी पहले गर्दान बनाए, इसकी गर्दान क्या बनेगी सबसे पहले है खाराजा की। खराजा, खराजा, खराजू, खराजत, एंड खराजता, एंड हाँ बिल्कुल ठीक, खराजना, खाराजाता। या खरजना। फिर खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, एंड खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। जी, अब हम ये देखिए हमारे पास 14 के 14 सीए आ गए गर्दान के। अब इसमें जो देखिए मैं लगाती हूँ इसके साथ, अब इनके साथ अभी आप हमने देख लिया कि फाइल जो है वो इनके साथ अटैच होके आ रहा है। हर एक जो सीगा है वो फेल प्लस फाइल है, कोई भी फाइल से खाली नहीं है गर्दान का। और गर्दान के 14 सीगे, ये 14 जुमला फेलियां हैं। हमने ये जी पढ़ा जी है ना, ये जी 14 जी, के बिल्कुल। 14 जुमला जो सीगे हैं ये जुमला फेलियां हैं। अब देखिए मैंने अब लगाया हमारे पास फाइल जो है ना दो सूरतों में आ सकता है। एक तो जमीर की सूरत में आ सकता है, ठीक है, ठीक। जमीर यानी कि मरफू मुत्तसिल जमीर की सूरत में आ सकता है। और दूसरा आ सकता है हमारे पास जो किस सूरत में आ सकता है, जाहिर की तो सूरत में। ताहिर की सूरत में आ यानी कि सकता है। किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है वो ना, या कोई मुरक्कब भी हो सकता है। जो हमने चार मुरक्कबातें पढ़े हैं, उनमें से तीन जो मुरक्कब हैं वो एज अ फाइल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे जी जी। मुरकबे इशारी भी आ सकता है, मुरकबे तौसीफी भी आ सकता है, मुरकबे इजाफी भी आ सकता है, एज अ फाइल आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हम मैंने इसको वाहिद इसम के तौर पे, या अब यहाँ पे मैं हम हारा जा मैं लिखती हूँ, हम्म, ठीक है। अब आप इसके साथ फाइल अटैच करें। अब बताएं इसके साथ
कहते हैं खारजा। खारजा अगर हम करें तो उसके साथ फाइल फाइल जो हम अटैच करेंगे कि जिस पे काम हुआ। अम, खारजा। ये नहीं लिख रहे, इनके निकला, खारज आप लिख ले खालिद निकला या महमूद निकला, हामिद निकला, जाहिद निकला, कुछ भी कह दिया आप, या कोई लड़का निकला, कोई भी आप खारजता महमूदन। ये पहले वन सीखे से शुरू कर लें, खाराजा। सो खारजता होगा। नहीं, खारजा। खरजता क्यों हो जाएगा, खरजता क्यों बन जाएगा, खाराजा खरजता क्यों बन जाएगा, हमने कहा खाराजा फेल है, अब हमने कहा ये फेल है, अब इसके साथ हमने कहा फाइल इसके अंदर नहीं है, हमने तो जो है ना वो कर दिया है, ठीक है, अब हम खारजा फाइल को बाहर लेते हैं। वाहिद मुजक्कर का सिगा हम करेंगे अगर इसी तरह तो खारजता हो जाएगा। नहीं, खाराजाता क्यों हो जाएगा, उस इसलिए कि पहला सीगा जो है वो हमेशा ऐसे ही होता है, उसके अंदर मुस्ततिर छुपी हुई जमीर होती है पहले में भी। अच्छा तो इसके जमीर साथ छुपी हुई, फेल अच्छा जाहिर करेंगे, पहले, फाइल को जाहिर अच्छा करना मेरी बात पड़ेगा। सुनिए, पहला और चौथा जो सीगा होता है ना उसमें हम फाइल, इन दो सीगों में हम सिर्फ फाइल जाहिर लेके आ सकते हैं इनके साथ। अब आप, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब आप खुद थोड़ा सा इसको करें, नहीं तो फिर मैं दूसरी स्टूडेंट को फिर कहती हूँ कि वो आप वो करें ताकि आप भी देख सकें, ठीक है। कैसे कर खाराजा, सकते? फाइल लगाएं, खाराजा खाराजा खारा खाराजा दाऊद। मैं करूं? खाराजा दाऊदू, ठीक है, ठीक है, और दाऊदू, खाराजा जैदन। खाराजा जईदन आपने कहा, जैदन। आपने कहा, जैदुन हो जाएगा, जैद ने मदद की। हाँ अब ठीक है, आपने जईद क्यों हो जाएगा, जईदन क्यों, आपने पहले जईदन क्यों बोला था। ये डिफरेंट होते हैं, जैसे हम मंसूब, जैसे मंसूब जमीर जो होती है वो जब दो जगहों पे लगती है, जब इन्ना के बाद आए नहीं या फेल मंसूब, के बाद आए। नहीं, अच्छा पहले आप मुझे बताएं, फाइल होता जुमला फेलिया में हम अगर जमीर की सूरत में भी लेते हैं, हमने कहा इनके साथ जो अटैच होती है ना वो मरफू मुत्तसिल जमीरें अटैच होती हैं, ठीक है, हमने ये नहीं कहा इनके साथ अगर मंसूब मुत्तसिल जमीर अटैच हो जाएंगी ना तो वो जुमला ही बदल जाएगा। फाइल जो है ना वो वो इराबी हालत में आता है, हमेशा ऑलवेज किस इराबी हालत में होता है फाइल। फाइल हमेशा ऑलवेज, फेल जो है वो मरफू में, फाइल हमेशा, फाइल भी मरफू हालत में आता है। अच्छा फेल को ये हम ये नहीं कहते कि मरफू या मजरूर आ गया, फेल फेल ही होता है, वो माजी होता है, उसका ताल्लुक जमाने के साथ होता है, ये माजी होता है या मुदारी होता है, ठीक है, फेल वो ठीक होता है। लेकिन अब इसके साथ जो जमीरें, अभी हमने जमीरें देखी ना कि किसी के साथ अलिफ अटैच है, किसी के साथ ता है, किसी के साथ ती है, ये मरफू मुत्तसिल जमीरें हैं, इनके साथ जो अटैच हो जाती हैं। अब हमने, मैं आपको कह रही कि अभी हमने तो मरफू मुत्तसिल जमीरों की सूरत में फाइल को देख लिया है, अब मैं कह रही हूँ आपको आपको इसम जाहिर की सूरत में फाइल लेके आए, और फाइल जो होता है वो हमेशा मरफू हालत में होता है, कभी भी मंसूब नहीं होता। अगर हम्म। फाइल की बात करेंगे ना वो मफूल होता है जो जिसके ऊपर काम हुआ होता है, जैसे जो है अहमद ने रोटी खाई, ठीक है, अहमद ने खाई, अब अहमद जो है ना वो फाइल है, ठीक है, और खाई जो है ना वो फेल है, अब तो उसने मुझे खाया समझ आ है आकाला, गई। अब ठीक है, ये और अब जो रोटी जो जिस पे काम हुआ है वो मफूल है, रोटी पे काम हुआ है ना, उसने खाया खाया है, रोटी खाई है, जिसने खाई है वो फाइल है, और जो बाकी जो है वो खाया जो खाई जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है, इन तीनों चीजों को अलग अलग अंडरस्टैंड करें, फाइल जो है ना ऑलवेज मरफू होगा। आप बताएं। सो अब अगर मैं अब कहूँ कि वो खाराजा जाइदुन, जाइद चला गया, हाँ, जाइद हाँ, गया। अब जई अब आप बताएं जईदुनी क्यों लगा, जईदन क्यों नहीं लगा। ये क्योंकि फाइल हमेशा मरफू हालत में ही होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाराकल्लाह फीक, यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्योंकि फाइल हमेशा मरफू मरफू होता है, हालत। जब हम फाइल लेके आएंगे तो हम हमेशा मरफू हालत में लेके आएंगे, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ ठीक है। इसके साथ बताएं, खारा जा के साथ, सो नेक्स्ट वन जो है वो खारा जाग दोनों जो हैं होंगे, दो 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 के लिए हम करेंगे खारा जा जईदुन व हामिदुन। ये हो सकता है। ये खारा जा व जईदुन व हामिदुन, हामिद अच्छा ये और देखो, गर्दान का जो दूसरा सीगा होता है ना उसका जो फाइल है ना, जब यहाँ पे अटैच है ना यहाँ पे, तो फिर वो हाँ। अब अलहदा नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा अब, ठीक है, वो ठीक क्योंकि है, अटैच होके ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अगर हमने कहना है कि दो निकले हैं, अब यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एक जुमला फेलिया है, इसके साथ इसका जो फाइल ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, अगर हम कहते हैं दो जैद और हामिद निकले हैं, यानी कि हमने कहा जईदुन व हामिदुन, ये दोनों निकले हैं, ठीक है,
अब ज़ैदुन व हामिदुन हमने मतलब ये दोनों को फाइल बनाया है, क्योंकि हमने मरफू सीगा ये दोनों के लिए मरफू इस्तेमाल किया है। अब हम तो इसके साथ जो लगाएंगे ना सीगा, वो ऑलवेज होगा ना, वो वाहिद मुजक्कर खरज का होगा, ये पहला सीगा वाला ही है। होगा, खरजा ज़ैदुन व हामिदुन, ये। हाँ खारा। अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे आप मुझे सिंपल कहें मैम इसके साथ तो फाइल ऑलरेडी अटैच है, और अब ये यहाँ पे नहीं आएगा जमीर की सूरत में, या तो जमीर की सूरत आता है, बस ये जो पहला और चौथा सीगा होता है ना, क्योंकि इनकी जमीरें मुस्ततिर होती हैं, इनकी जमीरें साथ, ये भी देखिए अरबी जुबान का एक हुस्न है, एक इसकी खूबसूरती है कि दो जो सीगे हैं जिनके जमीरें मुस्ततिर हैं, उनके फाइल जो है ना वो अलहदा से आते हैं, उनके साथ फाइल अलहदा से अटैच उनके जाहिर की सूरत में आते हैं, फाइल इसम जाहिर की सूरत में आते हैं। बाकी जितने भी 10 सीगे हैं, बाकी नहीं 12 सीगे हैं, उनके जो हम कहेंगे उनके साथ मरफू मुत्तसिल ज़मीरें अटैच हैं, तो अब अलहदा से उनके साथ फाइल नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गई है। जज़ाकल्लाह खैर। अब वो मेरा जो है ना वो ज्यादा ही हो गया था। अब मैं हम नंबर 3 सीगे पे थे, खारा जू के पास। ठीक है, खारा जू के साथ हैं हम। अब इसके साथ मैं कहती हूँ आपको आपको फाइल लेके आए, फाइल इसम जाहिर लेके आए। सो इसके साथ खराजू के साथ भी ये भी खराजू नासिरुन व या कैसे कह सकते हैं, नासिरुन व जाइदुन। सो ये भी वो नहीं खराजा, ना कह सकते ये भी आप फिर खराजा, कहें कि हम इसे लिखेंगे ये भी खारा जा। खराजा ही होगा। ये भी खराजा होगा, नासिरुन व जाइदुन कि किसी किस ये जो है इनके, ये पहला और छठा जो सीगा है वो जमा के लिए, दो के लिए, सब के लिए वही आएगा। हाँ अब अगर देखिए, आपने खारा जू को मैं कहूँ इसके साथ फाइल अटैच करें, आपने कहना है आप मैं कहूँ फाइल लेके आए, फाइल आपने कहना इसम जमीर की सूरत में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसम सिस्टर जाहिर की इसमें, सूरत। एक्सक्यूज मी सिस्टर, इसमें जाहिर रहा तो पहला और चौथा सीगा फकत ही लगेगा नहीं सिस्टर, इसमें जाहिर रहा जी तो। जी ये 10, यही जी तो हम बिल्कुल। करेंगे। इसमें जाहिर आया तो तब भी हमारा पहला और चौथा सीगा लगेगा। चौथा सीगा क्या कहते ऑलरेडी मुजक्कर को मुजक्कर, मोनस को मोनस, फर्स्ट को हाँ मुजक्कर को लगेगा, अच्छा फोर्थ को मोनस को लगेगा। अच्छा, ये देखिए इस सूरत में बस आ सकता है हमारा, देखिए इस सूरत में सिर्फ आ सकता है कि अगर हमारी जो हम कह रहे हैं फाइल जाहिर हो जाए, वो इनके साथ वो सीगा, वो पता है किस सूरत में आ सकता है। जैसे हम अगर कह दें कि जईदुन व हामिदुन, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं खाराजा, मतलब हम जमीर के साथ इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ये खाराजा। अब ये जो होगा ना, ये फिर जुमला फेलिया नहीं रहेगा, फिर ये जुमला फेलिया नहीं होगा, ये फिर जुमला इसमिया बन जाएगा। ठीक है, ये फिर तरतीब इसकी खराब हो जाएगी। जो हम जुमला फेलिया में तरतीब लेके आते हैं, वो सबसे पहले फेल होता है। ठीक है, फेल के बाद हम उसके अंदर फिर अगर पहला और चौथा सीगे के साथ हमने देखना होता है, वो जो फाइल है वो जाहिर भी हो सकते हैं, मतलब इसम इसम की सूरत में भी आ सकते हैं, या फिर जमीर की सूरत में भी मुस्ततिर भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बाकी जो मोनस 12 चीजें हैं। अगर मोनस के लिए हम लाएं तो वहां पे हमने फिर हमने खारा जत लाना होगा कि खारा जत हाँ जैनब बिल्कुल, हाँ हाँ खारा सारा जत लाना होगा। जैनब व मरियम जी और जैनब या फातिमा, उसके लिए खारा जी जत बिल्कुल। लगेगा। कि मर्द मुजक्कर के लिए जो है वो खारा जा लगेगा। जी अब हो गया। अब ये ये इसको हमें कोई कंफ्यूजन तो आई नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, नहीं नहीं अब क्लियर हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट हमारे साथ रोल नंबर 33, आप जी रोल अस्सलाम नंबर वालेकुम। 33। वालेकुम अस्सलाम। अब नेक्स्ट हमारे पास फेल जो है ये सामिया है, ये जी जो फातिहा के वजन पे जो हमारा थर्ड पैटर्न है फेल माजी का। अब पहले इससे इसकी गर्दान बनाएं, फिर हम इसके साथ फाइल अटैच करेंगे। बताएं। जी समिअ समिआ समिउ समिअत समिअता समिअना समिअता समिअतुमा समिअतुम समिअती समिअतुमा समिअतुन्ना समिअतु समिअना। हाँ अब ये हमारे पास गर्दान के 14 सीगे आ गए। अब हमने कहा हम जो है ना फाइल इसम जाहिर के तौर पे इनके साथ लेके आते हैं। ठीक है। जी
اب اس کے ساتھ یہ بھی کچھ سیگے میں لکھے، ان کے ساتھ آپ کریں. آج سامیہ کے ساتھ آپ لے کے آئیں. سمع زید سامیہ زیدن. اور اس کے ساتھ سامیہ کے ساتھ سمع کے ساتھ نہیں لگ سکتا کیونکہ اس میں آلریڈی ضمیر کے طور پہ فاعل موجود ہے. ہاں، اور سامیوں میں بھی جی اس میں بھی صحیح ہے. سامیات. سمعت زینب سمعت زینب سامیات زینب. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا. یہاں پہ ظاہر آ سکتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں، یہاں پہ ہم نے اب پتہ ہمیں چل گیا کہ باقی 12 سیغوں کے ساتھ ہم اسم فاعل جو ہے نا وہ اسم ظاہر کی صورت میں نہیں آئے گا، صرف پہلے جی اور چوتھے سیغے کے ساتھ آئے گا. اب میں نے سامیہ زیدن، مطلب ہمارا فاعل ایک ہے. اگر میرے فاعل جو دو ہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ورک کرتے ہیں. میرے فاعل دو ہیں، سامیہ. اس کو بلکہ ایسے لکھتے ہیں، میں لکھتی ہوں زیدن و حامدن. اب مجھے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ فعل اٹیچ کرنا ہے. میں کون سا فعل اٹیچ کروں گی اس کے ساتھ؟ اس سے بھی سمع ہی لگے گا پہلا صیغہ. سامیہ الگ. اب میں ان کو 3 بنا دیتی ہوں، زیدن و حامدن و محمودن. تب بھی پھر یہی لگے گا. پھر بھی فعل جو ہے وہ واحد مذکر ہی رہے گا. اب میں جی اس کے ساتھ ایک اور کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ زینب لکھوں گا. زینب. تب بھی ہمارے پاس سمع ہی لگے گا کیونکہ ہم اگر مذکر مؤنث سے ساتھ آ جائیں تو ہم مذکر ہی فعل استعمال کریں گے. ہاں، مذکر فعل واحد مذکر غائب ہی استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس مؤنث اور مذکر دونوں آ جاتے ہیں ایز اے فاعل، تو پھر ہم گردان کا پہلا صیغہ ہی استعمال کریں گے، واحد مذکر غائب کا. اب میں جو ہے نا وہ لے کے آتی ہوں. آپ کوئی بتائیں مجھے ایز اے فاعل ایک مرکب بتائیں، کوئی سا بھی مرکب. ابن حامد. اب میں نے یہاں بھی لکھا اخو حامدن، ابن حامدن بھی ہو سکتا ہے، اخو حامدن. تو اس کے ساتھ ہمیں اب کون سا جو ہے وہ صیغہ میں آپ سامی آسی کریں، ٹھیک ہے، اسی فعل ماضی کو رکھیں. اس تو میں کیا بھی لگاؤں سمع گی؟ لگے گا اس میں بھی سامیہ لگے گا، یعنی کہ کیونکہ یہ بھی اس میں میں ظاہر کے حامد. طور پہ حامدن بھی اس میں ظاہر ہی ہے. اب آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہے. اچھا، یہ اخو حامدن کس اعرابی حالت میں ہے؟ تو بھائی مرکب اضافی ہے اور مرفوع ہے. اچھا، مرفوع آپ کو کیسے پتا یہ چلا یہ مرفوع حالت میں؟ کیونکہ یہ اخو کا لاسٹ والا واو جو ہے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. اسماء خمسہ اب سے ہاں، اسماء خمسہ سے. اسماء خمسہ کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پیش سے مرفوع اور الف سے منصوب اور چھوٹی یہ سے مجرور. ہاں، واو سے مرفوع، ٹھیک ہے، پیش سے نہیں، واو سے مرفوع، الف سے منصوب اور یا سے مجرور ہوگا. یہ ہمارا مرکب اضافی کا اعراب ہمیں مضاف سے پتہ چلے گا. اور ہم نے یہاں پہ مضاف میں ہمارے پاس اسماء خمسہ میں سے ہے تو پھر اس لیے اخو لگا. اگر میں اس کو حامدن بنا دوں، اخا حامدن، یہ ہو سکتا ہے ایز اے فائل آ نہیں سکتا ہے؟ نہیں کیوں نہیں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ جو ہم اگر سب ترجمہ یہ منسوب ہو گیا. ہاں، یہ منسوب ہو گیا. اور فائل گرامیٹیکلی ہمیں رانگ، مرفوع چاہیے ہوتا ہے. گرامر کے فائل لحاظ ہمیں سے رانگ. مرفوع چاہیے. ہاں، گرامر لحاظ سے رونگ ہے. اب میں یہاں پہ مرکب توصیفی بتائیں، کوئی مرکب توصیفی. ولد صالح صالح. والد صالح. ٹھیک ہے، یہاں پہ والد صالح. اب اس کے ساتھ پہلے تو فعل اٹیچ کریں. سمع
सामी आ गया, क्योंकि हमारे पास फाइल जो है वो इसम जाहिर ही आ गया। अब इस वालिद और वालदान ही आप लेके आए, क्योंकि वालदान ही के साथ जो है ना हमारा, यानी कि मुसन्ना का ले आए आप ना, मुसन्ना को लेके आए एज अ, वलादानी सोलहानी। हाँ वालदान, सॉरी, तब भी इसके वालदानी साथ सालिहान। समी। अब हमारे पास हमने कहा वालदानी सालिहानी। अब यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि जो फाइल है, अगर फाइल लेके आए ना, दो नेक लड़कों ने सुना, इसका मतलब क्या होगा, दो नेक लड़कों ने सुना। तो हमने जी। कहा फाइल जो है हमारा हालते रफ में होता है। तो अब ये यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये वालदानी सालिहानी हालते रफ में है, मरफू मुसन्ना है? का मुसन्ना के हमें एराब ऐसे पता चलता है, आनी से मरफू, और आइनी से मजरूर और मंसूब। हाँ ये हमारे पास है, क्योंकि जो मुसन्ना है इसका इराब हमारे पास हुकात से, हरूफ से शो होता है। और यहाँ पे आनी और ऐनी की जो आवाजें आ रही हैं यहाँ पे, ये हमारे पास हालते रफ और हालते नसब और जर की हालतें हैं, और आनी की जो आवाज है ये हालते रफ में है। तो ये एज अ फाइल हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, दो नेक लड़कों ने सुना। जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हा उलाइल औलाद। अब ये यहाँ पे ऐसे ही होगा, तो फिर ये मरतबे इशारी बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जी। इसका इराब कैसे, अब ये एक आपने यहाँ पे देखा, ये कौन सा मरकब है? एक मुरक्कब इशारी। हाँ इसका इराब इराब मैंने इसको एज अ फाइल लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने हा उलाइल औलाद सिर्फ लिखा है। मैंने इसको हालते रफ में क्योंकि फाइल आपने एज अ फाइल लेके आना है ना, हालते रफ में औलादू। मैं इसको हाँ औलादू। यहाँ पे हमारे जो मुरकबे इशारी का इराब होता है वो कहाँ से पता चलता है? मुशारा निलय से। मुशारुन अलैहि से। तो हम मुशारुन अलैहि को, क्योंकि जो इस्माइल इशारा है वो मबनी होते हैं, तो फिर जी। इसलिए जो हमें इराब है वो मुशारुन अलैहि से पता चलेगा। हाँ उलाइल औलाद है, तो इसके साथ मैं फेल कौन सा अटैच कर सकती हूँ? उन दो लोग, ये दो औलाद, इनकी दो ज्यादा से जो जमा समय इनके ही लगेगा। कौन सा लगेगा? समय, पहला सीगा। हाँ बहुत से, हाँ बहुत से लड़कों ने सुना, तो फिर भी हम लगाएंगे सामिया। देखिए तीनों, वाहिद के साथ भी, मुसन्ना के साथ भी और जमा के साथ भी हमारे पास जो सीगा है वो वाहिद सेम ही मुजक्कर रहेगा। गायब का ही है, सेम ही जी। रहेगा और वाहिद मुजक्कर गायब का होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो फाइल है एज अ फाइल आ रहे हैं वो मुअन्नस भी आ जाता है, एक मुअन्नस होता है या दो मुअन्नस होते हैं और एक मुजक्कर होता है, या दो मुजक्कर है और एक मुअन्नस है, एज अ फाइल आ गए हैं, तो फिर गर्दान का कौन सा सीगा लगेगा? पहला ही सीगा लगेगा। हाँ फिर भी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा ही लगेगा। ठीक है। और सामी अज मैम एक अगर बात हम, पूछना, जी, ये तो इसमें तो लेकिन फेल जाहिर नहीं है ना, जब फेल जाहिर होता है तो फिर पहला और चौथा सीगा लगता नहीं कहाँ पे फेल जाहिर नहीं है? नहीं आप पूरी बात कहाँ भी फेल जाहिर नहीं है आपने कहा? रोल नंबर 78, आवाज आ रही है? है। जी मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही? हेलो। मुझे नहीं आपकी आवाज, आप बताएं। हाँ अब आप आवाज आई। मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि हाउलाई औलादुन जो है, इसमें फेल जाहिर तो नहीं है, लेकिन जब फेल जाहिर होता है, वो फाइल फाइल जाहिर होता ये है। फाइल क्यों नहीं है ये जाहिर? औलादुन ये फेल सब जाहिर होगा। हाँ ये सब लड़के, अच्छा, सही। या सही। है, सुना इन सही। सब लड़कों ने, ये सब लड़कों ने सुना, जी। तो ये जाहिर हुआ ना, ये मैम फाइल मैं ही है बताऊं? ना। लड़के हैं, सही। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है।
جی جی میں وہ نام کا مجھے آ گیا تھا کہ شاید نام سے ہی ظاہر ہوگا. صحیح ہے. نہیں، اسم اب آ یہ گیا. دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس، ہاں اب جو ہے اس ہمارے پاس یہ والا بھی ہو گیا ہے سامیہ کے ساتھ. اب میں کبھی اسم نہیں ضمیر نہیں ہوگی تب ہمیشہ ظاہر ہوگا فائل. جی، جب ہمارے پاس، اب دوبارہ بولیں. جب فائل ضمیر نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہمیشہ فائل ظاہر ہی ہوگا. ہاں، فائل ظاہر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس فائل جو فیل کے ساتھ جو اٹیچ سیغے مرفوع متصل ضمائر ہوتے ہیں وہ ایز اے فائل ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو مرفوع کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ رول نمبر 81. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم وہ السلام. یہ عالمہ ہے ہمارے پاس فاعلہ جی کے وزن سسٹر پہ. جی. عالمہ، اس میں آپ بنائیں، اس میں گردان گردان بنانا پہلے سسٹر. بنا دیں. گردان جی بنانا. جی عالمہ، عالمہ، عالمو، عالمت، عالمتا، عالمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. جی، یہ الحمدللہ یہ ہماری گردان کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب جی اس سسٹر. میں جو ہے نا میں نے ان کے ساتھ فائل کو اٹیچ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جی عالمہ، جی ٹھیک ہے. جی. عالمہ کا مطلب کیا آ گیا؟ جاننا. اس کا میننگ کیا ہوگا عالمہ؟ جاننا نہیں سسٹر، جاننا. جاننا، ہاں جاننا، ٹو نو جس کو ہم کہتے ہیں جاننا، ٹھیک ہے. ہوں. اب یہاں پہ میں لکھتی ہوں، میں ایز اے اس کو زینب، زینب و ہوں. مریم. اب اس کے ساتھ مجھے جو ہے نا فائل، یہ اس کو فائل بنانا ہے میں نے، زینب و جی مریم کو. جی. زینب اور مریم کو میں نے فائل بنا لیا، تو میں کیا اب اس کو حرکات کون سی علیمت، لگیں گے؟ علیمت لگے گا سسٹر، علیمت. علی مت لگے گا، کیوں لگے گا؟ چوتھا سیگا علیمت کیونکہ مونس وہ بھی تا کا یہ مونس وہ ایک مذکر رہا تو ہمیں پہلا سیگا لگیں گا. نہیں، ابھی اس کو جو ہم نے فائل لکھا نا اس کی کو بتائیں کہ دونوں مونس ہیں. اس کو مونس یہ ظاہر اسم ظاہر ہے سسٹر، مونس ہاں اسم ظاہر ہے، اس کے لیے ہاں، فائل علیمت ظاہر لگے ہے. گا. ہاں، زینب اور مریم نے اس کی، اور آپ مجھے بتائیں زینب کے میں اینڈ پہ کیا لگاؤں؟ ہاں، زینبو، مریمو. ہاں، اور یہ کیوں لگنا ہے ایک پیش اور دونوں پہ؟ کیونکہ فائل رہنے سے تمہارا غیر منصرف رہنے سے بھی تنوین نہیں ہاں آئے گا. ہوں. ہاں، غیر منصرف کی وجہ سے تنوین نہیں آئے گا، ادروائز اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتے تو پھر ہم ان کو ضمہ تعین کے ساتھ لکھتے، ٹھیک ہے. جی جی. اگر میں اب دیکھیے عالمت، زینب و مریم میں نے کر دیا، میں اس کو ساتھ لے کے آ رہی ہوں. ہوں. زید بھی میں نے لے آئی ہوں، ٹھیک ہے، زید بھی ان میں ہاں اب شامل ہو گیا ہے. جی. اب میں کیا کروں، اس کے ساتھ یہی والا تب سیگا رہنے دوں؟ پہلا سیگا لگیں گا سسٹر، علیمہ. عالمہ، اب یہاں پہ یہ نہیں آئے گا سیگا عالمت نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ مذکر اور مونس دونوں جمع ہو گئے ہیں. جب یہ دونوں جمع ہوگا. مذکر اور مونس آ گئے تو پھر جی ہمارے جی. پاس سیگا پہلا آئے گا، واحد علیمہ. مذکر غائب کا آئے گا، جی. عالمہ، علیمہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کوئی مرکبے اضافی لے کے آئیں، ایز اے فائل لے ہوں. کے آئیں. جی. ہوں. علیمہ. عالمہ والا میں لکھ دیتی ہوں. علیمہ ولد زیدن، ولد زیدن، علیمہ ولد زیدن. چلیں ٹھیک ہے، عالمہ والا دو زیدن، زیدن. زیدن. زیدن، ٹھیک ہے. مرکب اضافی. مرکب اضافی، اس کو مثنیٰ میں چینج کریں. ہاں. علیمہ ولدا، ولدا زیدن. ولدانی ہے نا، سو والدہ، وہ نون ڈراپ ہو جاتا، اس کے لیے ولدا زیدن.
बाराकल्ला फीक। अच्छा, पिछले दफा जो पिछले एग्जाम्पल में जो थी वो मरकबे तौसीफी था, वालदानी स्वालिहानी, और वहां पे हाँ इसलिए जो है ना मरकबे तौसीफी में नहीं होता, यहाँ पे मरकबे इजाफी है। जी तो मरकबे जी, इजाफी में इसमें नून मुसन्ना का ड्रॉप हो नून जाएगा। होगा। नून। ठीक, वालदा जईदिन। जी, यहाँ पे मैंने फिर कौन सा लगाना है? क्या सिस्टर? वलदा, वलदानी नहीं सिस्टर, वलदा जैदिन, वलदा जैदिन। नहीं नहीं, आनी मैं कह रही हूँ आपको फेल कौन सा ये, लगाऊं मैं? नहीं नहीं, फैल आपको अलीमत, अलीमत। आलिमत आएगा? नहीं नहीं, अलीमा फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट आलिमा सीगा, आएगा। फर्स्ट सीगा। हाँ, आलिमा आएगा, ठीक है, यहाँ जी, पे आलिमा आएगा, आलिमा वालदा जैदिन। जईदिन। अब यहाँ पे मुझे इसका जो वालदा जो मरकबे इजाफी का इराब कहाँ से पता चल रहा है? जी, मैं इससे मुदाफ से। मुदाफ से पता चल रहा है। मुदाफ जो है ना वो उसमें तो ये आ रहा है ना, वालदा। हम्म। ठीक है, अब ये कैसे जी इसको पता चलेगा कि ये हालत जी, रफ में आनी है? एक्चुअल आपको वलदानी, आनी मुसन्ना रहने से आनी, उसका नून ड्रॉप हाँ, हो जाने से हाँ, आनी। मुसन्ना का इराब जो है वो अलिफ की सूरत में हालत रफ में होगा, जी और जी, जो या की सूरत में वो हालत या की नसब और सूरत में जर में होगा। नसब और जर में रहेगा। हाँ, तो ये वालदा जईदिन, दो लड़कों ने, जैद के दो लड़कों ने जान लिया, ठीक है। जी, तो ये हो जान गया लिया। हमारे पास। और मरकबे तौसीफी में लेके आए तो क्या होगा? मरकबे हम्म तौसीफी में आपने जमा लेके आना हम्म, है, जमा का हाँ, लेके आए। आलिमा वाला, ये मुसन्नत ले लगा सिस्टर। नहीं, जमा में लेके आए, जमा में लेके आए। अच्छा अच्छा, आलिमा औलादु, आलिमल औलादु सा अस्सालिहून। हाँ, औलादू अस्सालिहून। अस्वालिहूना, अल भी आएगा हम्म साथ, अस्वालिहूना। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये मरकबे तौसीफी की कंस्ट्रक्शन बन गई है। जी और इसमें जी, हमारे पास फेल कौन सा आएगा? अलीमा फर्स्ट मुरक्कब सीगा। इजाफी के साथ भी अगर बनाए जमा। जमा मरकबे इजाफी के साथ बनाए। अच्छा, जमा जमा मरकबी मरकबे इजाफी इजाफी। के साथ बनाए। हाँ आ, आ, औलादु जैदिन, औलादु हाँ, जैदिन। औलादू। आलिमा औलादु जी, जैदिन। हाँ, आलिमा औलादू जईदिन। क्योंकि जी अब मरकबे इजाफी का इराब जो है ना वो हमें मुजाफ से पता चलेगा। औलाद को हमने रफ हालत जी, में कर देना, और जईदुन क्योंकि वो जईदिन जो है ना वो मुजाफ इलैही है, वो मुजाफ इलैही ऑलवेज जो है वो हालते वो मजरूर होगा। मजरूर होता है, हालते जर में होता है, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अब एक अल्हम्दुलिल्लाह। रह गया गफ्फारा। तो ये हमारे साथ हम जज़ाकल्लाहु गफर, खैरन कसीरा 81 रोल नंबर बहुत अच्छा आपने किया। रोल अल्हम्दुलिल्लाह नंबर सिस्टर। है इनका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, आयशा सलमान का। आप आए, आपने रोल नंबर लिख लिया करें जरा तेजी से। आयशा, जी आप आए, आयशा सलमान। जी मैम। ये लास्ट लास्ट वाला हमारे पास है गाफारा। गाफारा फेल है, इसकी पहले जल्दी से गर्दान बना दें और फिर हम इसके साथ करेंगे इसका। मुझे आपने बताना है इनके साथ जो फाइल है वो क्या क्या है। बनाए गाफारा से गर्दान। मैम किससे? गाफारा, ये आप इधर लास्ट वाला में देख रही हैं, फेल। फाला के वजन पे है गाफारा। अच्छा, मुझे मैम नजर नहीं आ रहा कहाँ पे, इस सब सेम मफूल लिखा तरीका हुआ है है, ये ये देखें यहाँ पे सेम तरीका बनाने का। गर्दान कोई वही है तो। जो सबको बख्श दे रहा, जी जी। उसने आ, बख्श दिया। हाँ, हाँ, उसने बख्श दिया। गफारा, गफारा यानी अलिफ आएगा उसके आगे, और फिर हाँ, अब गफारू। बोलती जाए, अपनी आवाज से जाहिर करें कि आप लगा रही हैं, ठीक है। जी जी मैम। गाफारा, और अब बोलती जाए। गफारत, गफारत, गफरता, गफरता, ता यानी कि गफरता। ठीक ठीक है, हो पहले गया, आप आएगा बोलती गफरत, जाए। गफरता, गफर, गफर हुन्ना या गफरना, गफरना, हाँ, गफरना। गफरना।
नेक्स्ट गफरता नहीं नहीं, गफरत गफरता तो हो गया ना, अब नंबर 6 सीगा बना रही, मैम गफरना वो के बाद वाला नंबर गफरत नंबर 7। गफरत नहीं, मैम जो गफरता ता जो ता हमने, गफरता के साथ देखिए हाँ सॉरी सॉरी गफरता, गफरत लाम कलमा जो गफरता है ना, लाम कलमा साकिन होगा और जमीर जो है वो मुतहरिक है, ठीक है, गफरता। गफरता जी मैम हाँ जी, गफरता आगे। गफरतुमा गफरतुम गफरती गफरतुमा गफरतुन्ना गफरतू गफरना गफरना, ठीक है, एक जनाब गफरना, नून को लंबा करके पढ़ना क्योंकि हाँ, ना की जमीर आ ना जाएगी, क्योंकि इसे छठे सीगे के साथ फिर नहीं तो इसकी आवाज मैच होने लग जाती है। जी मैम अच्छा, गफरना यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है इनके साथ फाइल कौन सा है, गाफर आपके अंदर फाइल कहाँ पे है? मैम इसी के अंदर है हुआ है हुआ है, मुस्ततील है, इसको इसके अटैच नहीं है इसके। मुस्ततील हाँ, हाँ, मुस्ततील है और ये मुस्ततिल। गफरा मुस्ततील जी, आप बोलती जाए, गफरा में कहाँ पे है फाइल? उसमें अलिफ अलिफ है हाँ, ये अलिफ जो है ये फाइल है, गफरू, वाव वाव अलिफ है वाव है वाओ, जैसे वाओ जो है, हाँ वाओ जो है वो इसको वाओ जमा भी कहते हैं, ये जमा को जाहिर हाँ करने के लिए आता है, वाहिद ये जमा मुजक्कर गायब के लिए है, ठीक है, गाफा। अब नेक्स्ट गफरत गफारा, में दिया होगा किया और गफरता में ये अलिफ है हाँ अलिफ है, और गफरना, नून है नून जबर ना जो है हाँ नून है, गफरना और आगे बताती जाए, गफरता, उसके बाद ता है ता जबर ता जो है और फिर हाँ तुमा वो है ताव के साथ फाइल है, तुम गफरतुमा, है और फिर तुम है जी, और फिर ती गफरती, है तुन्ना फिर तू और और ना हाँ ये हमारे साथ, ये हमारे पास क्या है, ये सारे फाइल हैं ये मरफू, पूरा नाम लें इनका, मरफू फाइल है मरफू मरफू मुत्तसिल है मरफू मुत्तसिल जमाइर है ये मरफू फाइल है मुत्तसिल जमाइर है, और ये सिर्फ फेल की जगह पे फेल के साथ अटैच होके आते हैं और एज अ हाँ फाइल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इनका और कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। जी जी मैम चलिए, हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया है इसका, अब थोड़े से जो क्वेश्चन हैं उनको करके हम फिर क्लास क्लोज करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। अब सिस्टर रुबीना आप करेंगी? यहाँ खाली जगह पूरी है हमारे पास, इसके हम इसको करेंगे थोड़ा सा। ये कोशिश सिस्टर करती रुबीना आप हूँ। बताएं, खाली जगह पूरे मैं बोलती हूँ, आप बताएं। अरबी जुबान में ज्यादातर अफ़आल डैश हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। डैश फेल फेल कितने फेल के ऊपर तीन फेल फाइल नहीं, अफ़आल कितने हरूफ, कितने, अब नंबर बताना है आपने, कितने हरूफ पर मुश्तमिल? 3 तीन हरूफ पर तीन मुश्तमिल सही होते हैं, ठीक है। 3 फेल माजी गुज़िश्ता डैश पर करता है, जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है फेल माजी गुज़िश्ता? डैश पर चला लेगा यानी कि फेल माजी गुज़िश्ता गुजरा मतलब हुआ होता है, जमाना गुजरा जमाना हाँ जी गुजरा जमाना जी, थैंक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास फेल मुदारे जो है डैश और डैश दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुस्ततिर माजी और मुस्तकबिल। यानी फेल मुदारे जो है वो किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, कौन से जमानों के लिए इस्तेमाल होता है? हाल हाल और और मुस्तकबिल माजी मुस्तकबिल। हाल और माज मुस्तकबिल के लिए, हाल और प्रेजेंट एंड मुस्तकबिल फ्यूचर मजारे टेंस। मजारे में जी 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 हाल और हाँ मुस्तकबिल मजारे जी जी, यानी कि फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। कातबा का प्रेजेंट मादा क्या है? कातबा का मादा क्या है?
कतबा काफ ताबा हाँ, काफ ताबा, कातबा का मादा काफ ताबा है। और कातिबुन का वजन क्या है? ये जो है इसका अभी चाहे ना भी आप करें, बता दें फिर भी अगर आता है तो कातिबुन का वजन क्या है? फाइलुन। कातिबुन का फाइल फाला फाइलुन। फाइल फाइल फाइलुन, ये देखे ना, ये इसका वजन है, ठीक है। जी। अब यहाँ पे अरबी में ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, फेल माजी जो है वो क्या होता है? ये वैसे हमने कर लिया, फिर भी आप बताएं, फेल माजी किसको कहते हैं? फेल माजी वो जिसमें जमाना पाया जाए। कौन सा जमाना पाया जाए? माजी का जमाना फेल हाँ, गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, गुजरा गुज़िश्ता हुआ या जमाना गुजरा जी। हुआ काम। इनके काम जिस फेल के अंदर, यानी कि वो फेल फेल माजी है, वो फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना किसी गुज, काम का होना या करना हो गुजरे हुए पाया जमाने में जाए पाया जाए, ठीक है। जी जी। और मादा किसको कहते हैं? मादा हाँ, हम कहते हैं ना मादा ये वो मादा है। वो Mother root होते हैं ना, word नहीं तीन sister. तीन लफ्ज होते हैं ना, रूट वर्ड रूट होते वर्ड, हैं, Mother तीन हाँ, root तीन word. रूट लफ्ज वर्ड को, जी, हाँ, तीन वर्ड तीन Fine उनके, love. हाँ, तीन Fine असली love. जो हरूफ होते हैं। फाइल अच्छा, आपने जो है सीगा क्या होता है? सीगा किसे कहते हैं? सीगा जमा का सीगा, वाहिद का सीगा, जैसे हुआ हुमा जैसे हुआ। हमारी किरदार में 14 सीगे हैं ना, 14 जी, तो 14 14 सीगा. सीगे जी जी। ये हो क्या कहते तो हैं? अब सीगा क्या? सीगा जमीर हुआ जमीर। हुमा अच्छा, हुआ। इसमें होता है फेल की, इसमें होता है सीगा हो जाता है फेल की वो तमाम सूरतें होती हैं जो किसी अ, खास जमीर के मुताबिक हो, यानी कि फेल की वो सूरतें जो जमीर के मुताबिक हों, ठीक है। दोबारा बोलिएगा, जैसे आपने हमने सुना कहा ही था नहीं ना, दिया। जैसे फेल की वो सूरतें, यानी कि हम 14 सूरतें फेल की बनाते हैं ना गिरदान में। जी जी जी। हम 14 शेप देते हैं वो फेल को, कोई सा भी फेल हो, खाराजा है, फेल को हम 14 सूरतें देते हैं। और वो 14 सूरतें कैसे देते हैं? हम उस जमीर के मुताबिक देते हैं, ठीक है। जो जमायर होते हैं, जितने भी जमायर हमारे पास है, मरफूम मुनफसिल जमायर हैं, मरफूम मुनफसिल जमायर को हम एज अ पैटर्न लेते हैं। उसके मुताबिक हम 14 जो है सीगे उसको हम तरतीब देते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले किया था, फाला के साथ हुआ की गर्दान, हुआ का सीगा, हुआ जी का जो जमीर है, उसके बाद जो है अलिफ फाला जिसके मुसन्ना की। साथ है, तो फिर हाँ वो हुमा की जमीर है उसके साथ, ठीक है। ये तमाम जो है हमारे पास अच्छा आ गए हैं, ठीक है। ये इमरान 14 से के जी 14 पाँच जमीर। इन्ना कंत समीउल अलीम, इन्ना कंत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम Walaikum अस्सलाम। salam wa rahmatullahi wa barakatuh.